This conference will now be recorded. Okay, so chapter name is Profit Planning and the Role of Budgeting. Basically, in this chapter, we are going to learn budgeting. Now, whenever we teach management accounting, we always say there are three keywords in management accounting, and those three keywords are planning, controlling, and decision making. And obviously, management accounting includes costing as well. So we are done with the costing part, and now we are actually moving towards the um, management accounting main functions, where we will be looking into planning, controlling, and decision making. प्लानिंग आपको पहले बताया हुआ है कि प्लानिंग क्या होती है. प्लानिंग is thinking about future, planning is foreseeing the future, planning is setting your objectives and goals and strategies to achieve those objectives. And out of so many plannings we do, one of the planning and one of the main planning from a company's point of view is profit planning, or we call it financial planning. And financial planning is done through budgeting. So budgeting is basically a tool for financial planning. अगर आपने profit planning करनी है, तो profit planning में क्या करना होता है? Profit planning में यही करना होता है कि अगले साल, आने वाले साल का profit plan करना है. Like how much profit we will earn in the year to come, or in the years to come. तो अगले साल का या अगले 2 साल का या अगले 5 साल का. And obviously, in order to do it, we have to do a comprehensive exercise where we not only plan for the next year's sales, we also plan for next year purchases, material, labor, overheads, everything. So effectively, we will be preparing an income statement and balance sheet for the next period. तो जिस तरीके से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गुजरे हुए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेट्स से वी आर हियर, हम इस वक्त 2020 में हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो स्टेटमेंट बना रहे होंगे वो 2019 से 20 की स्टेटमेंट बना रहे होंगे प्रॉफिट की, एंड वी कॉल इट अ प्रॉफिट स्टेटमेंट, और वी कॉल इट एन इनकम स्टेटमेंट. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद पास्ट. सो जैसे ही 2020 अभी खत्म होगा 31 दिसंबर, हम 2019-20 की यानी कि पिछले गुजरे हुए साल की एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, या प्रॉफिट स्टेटमेंट कह लें इसको, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लें. दैट लाइज इन द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट आज 2020 में बैठ के जब हम 2021 की यानी कि आने वाले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या इनकम समरी बनाएंगे, तो उसको हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट कहेंगे. We cannot say it income statement, we have to add the word budgeted income statement, and that statement will tell us how much profit we will earn in the next year. So the difference lies in past and future, and these are the differences we touched upon in the very first lectures. If financial accounting is concerned with the past, management accounting is concerned with the future. तो ना सिर्फ हमने फ्यूचर की प्रॉफिट को प्लान करना है, बल्कि हमने फ्यूचर के रेवेन्यूज को भी प्लान करना है, एक्सपेंसेस को भी प्लान करना है, एसेट्स को भी प्लान करना है, लायबिलिटीज को भी प्लान करना है. तो वो तमाम स्टेटमेंट जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गुजरे हुए साल की बनाते हैं, वो हमने आने वाले साल की बनानी है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट प्लानिंग, and the tool we will use to do it is called budgeting. So this chapter is all about budgeting. I will go through these slides one by one. ये slides book के chapter के sequence में ही हैं, and hopefully by the end of these slides
you will be able to learn what is budgeting and what are the different types of budgets and why we do budgeting. So with that background, let's read the slides. Let's understand the slides. We have an introduction. Budgets are one of the most widely used for planning and controlling. So प्लानिंग करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है वो बजट है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच एवरी ऑर्गेनाइजेशन डज. This is something which every individual does. This is something which every household does. Like हर घर में कोई ना कोई छोटा मोटा बजट बनता है. हर शख्स अपनी जिंदगी में कोई ना कोई छोटा मोटा बजट बनाता है. And you cannot think about companies or organizations, and especially the big organizations, without doing a proper budgeting exercise. So that is why this is one of the most widely used tools. So अगर आप किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट अकाउंटेंट लगते हैं तो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट एस्केप. दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है या एक आम अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए बगैर नहीं रह सकता, इसी तरीके से एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बजट्स बनाए बगैर नहीं रह सकता. So this is something you need to master. प्लानिंग क्या होती है बार बार बता चुका हूँ. प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली लुकिंग इनटू द फ्यूचर. कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल भी आपको कई दफा बता चुका हूँ. व्हेन यू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस सो दैट you can measure deviations and you can correct your course of action, तो उस चीज को आप कंट्रोल कहते हैं. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बजट प्लानिंग का भी टूल है और बजट कंट्रोलिंग का भी टूल है. सो बजट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग एज वेल एज फॉर कंट्रोलिंग. तो जहां तक प्लानिंग की बात है वो तो हमें समझ आता है कि अगले साल का आपने बजट बनाना है, अगले साल के आपने रेवेन्यूज को फोरकास्ट करना है, तो प्लानिंग का तो डेफिनेटली ये टूल है. कंट्रोलिंग का कैसे? सो डेफिनेटली बजट आपको आने वाले साल के एस्टिमेट्स दे देगा कि ये प्रॉफिट होना चाहिए, ये रेवेन्यू होना चाहिए. जब अगला साल आ जाएगा और आपके पास एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगी तो फिर आप उस एक्चुअल को कंपेयर कर सकोगे अगेंस्ट बजट्स. तो जब आपके पास एक कंपैरिजन मैट्रिक्स होता है, लाइक आपके पास बजटेड डेटा होगा, लाइक बजटेड रेवेन्यू एंड बजटेड सेल्स एंड बजटेड परचेजेस एंड बजटेड कैश, तो जब अगला साल गुजरेगा देन यू कैन मेक अ कंपैरिजन कि भाई हमने एक्चुअल सेल इतनी की है, करनी इतनी थी, एक्चुअल प्रॉफिट इतना हुआ है, होना इतना चाहिए था. तो उससे आपको पता लगता है कि आप ठीक जा रहे हैं या ठीक नहीं जा रहे. लाइक अगर आपने सेल्स कम की है तो you will try to find out the reasons for lesser sales, and then you will try to take remedial action. तो फिर आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करेंगे. सो इन अ सेंस आप बजट को एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं. बजट प्लानिंग के लिए तो होता ही है, बजट्स कैन बी यूज टू कंट्रोल. अब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो लोग अपना बजट मैनेज करते हैं, उनको पता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर को अपने बजट्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात जब वो देखते हैं कि बजट बहुत थोड़ा है तो बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं. और this is what we call controlling, that you are constantly comparing your actual performance with the or actual expenditure or actual revenue with the budgeted expenditure and budgeted revenue. And if you think you're going over budget or under budget, then you take some actions. हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप जो बजट्स है उसको अचीव कर लें. So that is why budgets can be used for both planning and controlling. Now there are certain definitions of this chapter. Budget क्या होता है? Budget is a detailed plan expressed in quantitative terms. So the most important terminology here is ये quantitative plan होता है. एक plan तो ये है ना कि हम मार्केट लीडर बन जाएंगे या हमने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है. एक जर्नल प्लान होता है, एक जर्नल गोल होता है, आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है. बट बजट जो है एक तो डिटेल्ड होगा, भाई उसको आपने अचीव कैसे करना है, एक एक कंपोनेंट पे आपको
इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा इट्स एक्सप्रेस इन क्वालिटेटिव टर्म्स. यू कैन नॉट डिस्क्राइब बजट इन क्वालिटेटिव टर्म्स. यू हैव टू डिस्क्राइब बजट इन क्वालिटेटिव टर्म्स. इतने यूनिट्स बेचने हैं, इतने का बेचना है, ये रेवेन्यू होगा, इतने यूनिट्स खरीदने हैं, इतने का खरीदेंगे, इतनी कॉस्ट होगी. So budget is a detailed plan expressed in quantitative terms that specifies how an organization will acquire and use resources during a particular period of time. आपके पास resources कहाँ से आएंगे, अब उनको इस्तेमाल कहाँ से करोगे. अगर आप देखो तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग इसी चीज पे ही बेस करती है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो. सारा का सारा जो 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 इवन अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी पे बेस करती है. सोर्सेस एंड यूजेस. तो आपका सोर्स क्या होता है? आपका सोर्स होता है आपका अपना पैसा, इक्विटी, और दूसरों का पैसा, डेट. तो डेट और इक्विटी बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं. या तो आप अपना पैसा लगाते हो, या फिर आप डेट लेते हो, शेयर कैपिटल, व्हाटएवर, जो ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं. और आप इससे करते क्या हो? आप इससे एसेट्स खरीदते हो, आप इससे इन्वेंट्री खरीदते हो, और फिर इस इन्वेंट्री को बेच के और उन एसेट्स को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाते हो. और वो प्रॉफिट फिर आपका एक और सोर्स, जब आप उस प्रॉफिट को इंटरनली इन्वेस्ट करते हो, जिसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, तो वो एक और सोर्स जनरेट हो जाता है. So in financial accounting, when we say assets equal liabilities plus equity, we actually mean to say that sources should be equal to resources. And after every transaction, we try to balance them out. तो यहाँ पे भी बजट्स में भी आपने यही देखना है कि भाई आने वाले वक्तों में, अगले साल में हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और फिर उसके लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, व्हाटएवर. अब वो जो भी आपको चीजें चाहिए उसके लिए सोर्स क्या है. तो ये सोर्सेस, रिसोर्सेज, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज जब आप बनाओगे तो फिर वहीं पे बात आ जाएगी. यू विल बी इफेक्टिवली मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फ्यूचर. उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बजटिंग. तो इंग लग गया इसके साथ. इंग मैं अक्सर बताता रहता हूँ. इंग हमेशा प्रोसेस को रेफर करता है. इंग हमेशा किसी अमल को रेफर करता है. सो आप ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट और द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट इज कॉल्ड बजटिंग. तो जब जिस प्रोसेस के तहत आप बजट बना रहे होते हैं, उस प्रोसेस को आप बजटिंग कहेंगे. वो जो भी प्रोसेस है, अभी हम उसमें से एक प्रोसेस देख भी लेंगे कि कैसे बनाना है बजट, तो उस प्रोसेस को आप बजटिंग कहेंगे. And budgeting system includes all the procedures used to develop a budget. System हमेशा नाम होता है किसी sort of procedures का. जब आप किसी चीज में procedures incorporate कर देते हैं, वो system बन जाता है, systematic हो जाता है. तो budgeting करनी है, लेकिन systematic करनी है. तो systematic कैसे करनी है? कुछ procedures follow करने हैं. वो procedures कौन से हैं वो आपको अभी बताए जाएंगे, और वो procedures हर organization में vary भी कर रहे होंगे. ये बात मैं बहुत दफा कर चुका हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस. इट्स नॉट समथिंग जिसके बारे में कोई आईएएस है कि बजट बनाना है, ऐसा बनाना है, ये उसका सिस्टम होगा, ये उसका डिस्क्लोजर्स है. ऐसा नहीं है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री टू चूज how they're gonna make budgets, what format they use, what procedures they use. That's why budgeting is an exercise which varies from one organization to another. In a chapter in this in these slides, हम सिर्फ आपको एक 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 कोई एक पॉसिबल वे बता रहे होंगे. और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि sometimes in management accounting we only teach best practices rather than every practice, and rather than standardized practice. So that best practice is not a standardized practice. तो प्लानिंग और कंट्रोल पे बहुत बात हो गई. अब सवाल ये है कि बजटिंग क्यों करनी चाहिए. अब इस सवाल के जवाब में मुझे चाहिए आंसर्स. आई विल होल्ड फॉर 2 मिनट्स, और इस 2 मिनट्स में आपने मेरा चैट बॉक्स भर देना है. और जब आप चैट बॉक्स भरेंगे तो आपकी एक वर्ड फाइल जनरेट होगी ऑटोमेटिकली, जिसमें पता लगेगा कौन क्या पार्टिसिपेट कर रहा है. और डेफिनेटली दिस इज एन एविडेंस ऑफ योर पार्टिसिपेशन. आगे आप खुद अक्लमंद हैं. तो बजटिंग क्यों करनी चाहिए? टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Okay, 2 minutes end, and the maximum responses which I'm getting is the same जो मैंने अभी आपको बताया है. Everybody is saying planning, 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 and maybe controlling. तो basically इसके अलावा मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया. तो इसको कहते हैं जो चीज आपको बताई गई है वही आपने मुझे बता दी है. इसके अलावा क्या हो सकता था? चलो देखते हैं स्लाइड्स क्या कहती हैं. तो स्लाइड्स में हमारे पास ये 5 चीजें हैं, और ये एक चीज पता नहीं क्यों तंग कर रही है. आपको भी नजर आ रहा है बॉटम पे ये यू ओनली हैव 687.44 MB ऑफ स्पेस. इसकी वजह से कुछ चीजें छुप भी रही हैं. तो चलें, अब ये किसी भी तरीके से जाने का नाम नहीं ले रहा, तो जो छुपी हुई चीजें उसको हम किसी और तरीके से फिर मैनेज करते हैं. चल 1 मिनट इसकी बात मान लेते हैं, सी योर ऑप्शंस कर लेते हैं, तो शायद ये अच्छा है. नहीं जी, नहीं मानता. ओके, अब इसको क्लास के बाद देखेंगे. तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो ये है टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी. देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है. तो वो स्ट्रैटेजी जो भी बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट करना है. कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो बजटिंग इज वन मैकेनिज्म थ्रू विच वी इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट प्लानिंग है दैट इज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. उसके बाद लिखा हुआ है टू एवेल्युएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस. बजट्स के थ्रू आप मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं. देखें, बजट्स क्या हैं? बेसिकली तो टारगेट्स हैं. तो जब आप किसी मैनेजर को, लाइक सेल्स मैनेजर को टारगेट दे देते हो अगले साल भाई इतनी सेल होनी चाहिए, तो फिर यू विल एवेल्युएट हिज और हर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैट टारगेट. अगर टारगेट अचीव कर लिया तो अच्छी परफॉर्मेंस है, नहीं अचीव किया तो बुरी परफॉर्मेंस है. तो बजट्स, we need budgets and we need targets so that we can evaluate the performance as well. फिर उसके बाद लिखा हुआ है टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड असिस्ट इन कम्युनिकेशन. तो बजट एक कोऑर्डिनेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है. जिन इदारों में और जिन ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग होती है उनमें बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि बजटिंग में आपके ऑर्गेनाइजेशन के तमाम पार्ट्स, तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में मिल बैठ के कोऑर्डिनेशन के थ्रू और कम्युनिकेशन के थ्रू मसाइल का हल निकालते हैं. लाइक अगर यूनिवर्सिटी में बजट बनना है तो एवरी डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर हिज और हर ओन बजट, हिज इट्स ओन बजट, और फिर वो जाके किसी एक सेंट्रल बजट कमेटी में जाके सारे निगोशिएट करते हैं कि भाई मुझे ज्यादा जरूरत है, मुझे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, आपके पास स्टूडेंट कम है, मेरे पास स्टूडेंट ज्यादा, दिस एंड दैट. तो बजटिंग के प्रोसेस में नेचुरली कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन आ जाती है. उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये तो मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा. ओके,
तो बार जितना मुझे आइडिया है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टू हेल्प अचीव टारगेट्स। सो ऑब्वियसली जब आपको पता है, आपको बजट्स का पता है, आपको टारगेट्स का पता है, तो एक सिंपल सी बात है कि हमें ज़्यादा मोटिवेशन होती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे वर्ड मोटिवेशन का ही होना चाहिए कि जब इंसान को अपने टारगेट्स का पता होता है कि हमने क्या अचीव करना है और कब अचीव करना है, तो सो वी फील मोर मोटिवेटेड। तो बजट्स के थ्रू हमारी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है उन टारगेट्स को अचीव करने की, क्योंकि हमें टारगेट का पता होता है। तो बजटिंग से मोटिवेशन भी बढ़ती है। फिर एक और बात ये है कि बजट आपको फ्यूचर में आने वाले पॉसिबल प्रॉब्लम्स का पहले से बता देता है, जिसको हम कहते हैं बॉटलनेक्स। So budgets help us in identifying potential bottlenecks. देखिए, आप बजट्स बना रहे थे, आपको पता लगा कि 2022 के जुलाई के महीने में हमारे पास कैश शॉर्ट होगा। लेट्स से आप कैश बजट बना रहे हो, तो आप 2020 में ये चीज आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जुलाई 2022 में हमारे पास कैश शॉर्ट होगा, और 2022 जुलाई में हमारी ये कैश की नीड्स होंगी और कैश शॉर्ट होगा। तो फिर अगर आपने आज उसको आइडेंटिफाई कर लिया और आज आज आपको पता लग गया, तो आप आज से उसको मैनेज कर लोगे। और अगर आपको उस वक्त पता लगा जुलाई 2022 में, तो फिर आप क्राइसिस मैनेजमेंट करोगे। हो सकता है फिर आपको फाइनेंसेस ना मिले, या मिले तो बड़ी हार्ड टर्म से मिले। तो अभी आप साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उसको सही तरीके से मैनेज कर लोगे, बैंक से निगोशिएट कर लोगे। तो ये तमाम फायदे हैं बजटिंग के, एंड दिस इज व्हाई वी शुड डू बजटिंग। अब आगे एक टर्म आ गई है, एंड द टर्म इज मास्टर बजट। तो मास्टर बजट कहते हैं कैश बजट को, बजटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, और बजटेड बैलेंस शीट को। तो बेसिकली वो जो 3 स्टेटमेंट्स आप बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनाते हो? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेटमेंट्स जब आप पिछले साल की बनाते हो, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप में आती है। लेकिन अगर यही 3 स्टेटमेंट्स आप अगले साल की बनाओ, तो पहली बात तो ये है कि फिर वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगी, बल्कि बजट्स कहलाएंगे। तो ये 3 बजट जब आप बनाओगे, तो इन 3 बजट्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जा रहा है यहाँ पे? मास्टर बजट। और मास्टर बजट होगा क्या? ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेशन होगा मैनेजमेंट प्लान। जिस तरह हम कहते हैं ना कि इनकम स्टेटमेंट एक समरी होती है, बैलेंस शीट एक समरी होती है। So basically income statement and balance sheet is a summary of what happened in the last year. तो समरी है। इसी तरीके से मास्टर बजट भी एक समरी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेशन है मैनेजमेंट प्लान्स का। अब यहाँ पे वैसे थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हैं, एक तरफ हम समरी कहते हैं, एक तरफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन कैश बजट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में सब कुछ आ जाता है। तो सारे के सारे जो प्लान्स हैं वो हमें इनके थ्रू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो बेसिकली 2 यहाँ पे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। मास्टर बजट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द फ्यूचर, और दूसरा, अगर आपसे को पूछे कि मास्टर बजट में क्या क्या शामिल है, तो मास्टर बजट कंप्राइजेस कैश बजट, बजट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बजट बैलेंस शीट। एंड आई डू कंपेयर दीज विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। तो अगले साल की जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो वो मास्टर बजट कहलाएगा। तो ये हमने बनाना है। ठीक है, ये हमने बनाना है मास्टर बजट। और मास्टर बजट क्या है? इट्स अ समरी ऑफ कंपनीज प्लान। ये हमने बनाना है। लेकिन अब ये उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक हमारे पास फंक्शनल बजट्स नहीं होंगे। फंक्शनल बजट ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक सेल्स के लेजर से हमें सेल्स की वैल्यू नहीं पता होगी, जब तक हमें परचेज के लेजर से परचेज की वैल्यू। तो जब तक टी अकाउंट्स नहीं होंगे, जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। चलो ट्रायल बैलेंस बीच में से निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस का मकसद तो सिर्फ एक एक्यूरेसी को कंफर्म करना होता है, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस प्रोसेस में नहीं आता डबल एंट्री के। ट्रायल बैलेंस हम अपनी तसल्ली के लिए बनाते हैं, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। सो लेजर पे ही रहते हैं।
कि जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें लेजर बैलेंसेस चाहिए, सेल्स के, परचेजेस के, एक्सपेंसेस के, एसेट्स के, लायबिलिटीज के, तो उसी तरीके से हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते जब तक हमें बजटेड सेल्स ना पता लगे, जब तक हमें बजटेड प्रोडक्शन ना पता लगे, जब तक हमें बजटेड मटेरियल ना पता लगे, जब तक हमें बजटेड लेबर ना पता लगे। तो हम मास्टर बजट उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक हमें छोटे छोटे फंक्शनल बजट्स हम नहीं बनाएंगे, सेल्स का, प्रोडक्शन का, मटेरियल का, मैन्युफैक्चरिंग का, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो आपका फ्रेमवर्क ऑफ बजटिंग है, इसमें मास्टर बजट बनाने से पहले आपको ये वाले बजट्स बनाने पड़ते हैं। And shortly in this lecture, we will learn how to prepare these budgets individually and then how to prepare the master budget. हमने individual budgets भी सीखने हैं और उसके बाद master budget भी सीखना है। Choosing the budget period. जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है टाइमलीनेस का, कि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि मिनिमम 1 साल का फाइनेंशियल पीरियड होना चाहिए। तो यहाँ पे बजटिंग के लिए भी, बजट बनाने के लिए भी, अगेन इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि वो बजट पीरियड क्या चूज करती है। बट जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है कि मिनिमम 1 साल का बजट बनाना चाहिए, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम ये कहते हैं कि मिनिमम 1 साल का आपको बजट बनाना चाहिए। हाँ, you can divide this 1 year into smaller periods like quarters or maybe monthly. So जिस तरह मैनेजमेंट चाहे वो बजट पीरियड को शॉर्ट कर सकती है। डेफिनेटली इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बट ओवर एंड अबव वी शुड प्रिपेयर एनुअल बजट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बजट सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पार्टिसिपेटिव बजट सिस्टम का। अभी हमने बजट बनाना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले जरा सॉफ्ट इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द सॉफ्ट इशू इज कि बजट का स्टाइल क्या होना चाहिए, यानी कि बजट बनाने का स्टाइल क्या होना चाहिए। दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक होता है टॉप डाउन और एक होता है बॉटम अप। टॉप डाउन और बॉटम अप। अभी आपके सामने 3 लेयर्स है मैनेजमेंट की। यू हैव टॉप मैनेजमेंट, देन यू हैव मिडिल मैनेजमेंट, देन यू हैव लोअर मैनेजमेंट। तो अगर बजट इस तरीके से बनाया जाए कि टॉप मैनेजमेंट बजट बनाए और वो ये दे दे मिडिल मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कराने के लिए लोअर मैनेजमेंट से, तो इस स्टाइल ऑफ बजटिंग को हम कहते हैं टॉप डाउन और इसका दूसरा नाम है इम्पोज्ड स्टाइल ऑफ बजटिंग। इम्पोज्ड स्टाइल ऑफ बजटिंग। और कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है कि टॉप मैनेजमेंट बजट बनाती है और वो टॉप मैनेजमेंट दे देती है मिडिल मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसका रैशनल टॉप मैनेजमेंट ये यूज करती है कि जी देखें, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर आइडिया है, विजन हमारा है, मिशन हमारा है, हम बेहतर जानते हैं क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्या सेल होनी चाहिए। तो बस मिडिल मैनेजमेंट का काम है कि वो इम्प्लीमेंट करवाए। सो हम मिडिल मैनेजमेंट से या लोअर मैनेजमेंट से पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे बजट्स के टारगेट सेट करते वक्त कि कितनी सेल होनी चाहिए। हम सेल्समैन से नहीं पूछेंगे या सेल्स सुपरवाइजर से नहीं पूछेंगे कि वो क्या समझता है कितनी सेल्स होनी चाहिए। हमें ज्यादा पता है कि सेल्स कितनी होनी चाहिए। अब इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि टॉप मैनेजमेंट को बाजुकात ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता होता। ग्राउंड रियलिटीज का मतलब ये है कि जो शख्स आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए फील्ड में जाता है और कस्टमर से जिसका वास्ता है, उससे पता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके कंपेटिटर्स का प्रोडक्ट कैसा है, आपकी प्राइस क्या है, आपके कंपेटिटर्स की प्राइस क्या है, कस्टमर क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये सारी ग्राउंड रियलिटीज का आइडिया फील्ड के लोगों को ज्यादा होता है। तो टॉप मैनेजमेंट जब बंद कमरे में, एयर कंडीशन रूम्स में, फील्ड डेटा की बगैर इस किस्म के टारगेट सेट करती है,
सो देर आर मोर एंड मोर चांसेस कि वो जो टारगेट सेट हों वो अनरियलिस्टिक हों, वो अनरियलिस्टिक हों और अनअचीवेबल हों। और जब वो अनरियलिस्टिक होंगे तो हमारे जिन लोगों ने उन टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करना है, जिन लोगों ने बजट को इम्प्लीमेंट करना है, वो उनके पास एक कह लें बहाना भी होगा और एक कह लें यानी कि एक्सक्यूज होगा कि चूंकि आपने हमारे से पूछा नहीं था। अब ये बहाना भी हो सकता है और रियलिटी भी हो सकती है कि चूंकि आपने हमारे से पूछा नहीं था और ये टारगेट्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, तो इसलिए हम अचीव नहीं कर पाए। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आपने बजटिंग में हमारे साथ कंसल्ट ही नहीं किया, हमें पार्टिसिपेट ही नहीं कराया। तो इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ सिचुएशन में इम्पोज स्टाइल अच्छा होता है, अभी मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। हम इसके जो दूसरी अप्रोच है पहले उससे बात कर लेते हैं, बॉटम अप। तो बॉटम अप में एरो का निशान आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है। बॉटम अप स्टाइल ऑफ बजटिंग को हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग भी कहते हैं कि हम नीचे से शुरू होंगे, सुपरवाइजर से पूछेंगे। लेट्स से अगर हम सेल्स की बात ही करें, हर एरिया का अपना सुपरवाइजर होगा, वो अपने एरिया की सेल के बारे में बताएगा। वो डेटा फ्लो करता हुआ मिडिल मैनेजमेंट से होता हुआ टॉप मैनेजमेंट पे जाएगा और टॉप मैनेजमेंट फिर अल्टीमेट टारगेट सेट करेगी, लेकिन उसके अंदर इनपुट होगी निचली लेयर्स की। सो दिस स्टाइल ऑफ बजटिंग इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल में वो जो एक प्रॉब्लम पिछला था वो नहीं होगा। और फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि इंडिविजुअल्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ द टीम हुज व्यूज और जजमेंट्स आर वैल्यूड। तो हर शख्स को ये लगेगा जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसे पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी जा रही है, तो एवरी मेंबर विल थिंक कि उसकी कोई वैल्यू है, उससे पूछा जा रहा है भाई, सेल सुपरवाइजर से पूछा जा रहा है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो शख्स फील्ड में होता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उस एक्टिविटी के साथ, वो बेस्ट पोजीशन में होता है बजट एस्टिमेट बताने के लिए, और वो ज्यादा रियलिस्टिक बजट एस्टिमेट बताएगा। और फिर जब एक शख्स खुद बता रहा है कि ये मैं कर सकता हूं, तो फिर वो फुलफिल भी करेगा उसे। यानी कि इसको हम कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड स्टाइल। ये भी एक अपने तरह का एक कंट्रोल होता है कि एक सुपरवाइजर ने जब खुद कह दिया कि ये टारगेट अचीवेबल है, तो कल वो उसको पूरा करने के लिए कमिटमेंट भी शो करेगा, क्योंकि उसने खुद कहा था। जब कोई ऊपर से कहता है तो आपके पास ये बहाना होता है कि आपने मेरी सिचुएशन को तो देखा नहीं, ग्राउंड रियलिटीज को तो देखा नहीं। लेकिन जब आपसे खुद पूछा जा रहा है और आप खुद बता रहे हो कि ये चीज हो सकती है, ये अचीवेबल है, तो फिर कल आपके पास ये बहाना नहीं होता। ठीक है। बट फिर भी पार्टिसिपेटिव स्टाइल के अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर हम लोगों से पूछेंगे, खास तौर पे अगर हम लोअर मैनेजमेंट से पूछेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्लैक जो है वो उसके अंदर ऐड कर दे। स्लैक होता है कि आप थोड़े से इनएफिशिएंसी का मार्जिन डाल देते हो। लाइक अगर मैं 100 सिम्स बेच सकता हूँ एक महीने में, तो मैं कभी भी अपने बॉसेस को ये नहीं कहूंगा कि मैं 100 सिम्स बेच सकता हूँ, मैं उनको कहूंगा मैं 90 सिम्स बेच सकता हूँ। यानी कि मैं मार्जिन रखूंगा कि थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वो मेरे पास ऐसा हो कि अगर मैं सुस्ती भी करूं तो टारगेट मेरा अचीव हो जाए। इसी तरीके से जहां पे 100 रुपए का खर्चा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा मैनेजमेंट को 110 रुपए के खर्चे की बात करूं। ठीक है, ताकि मेरा टारगेट 110 रुपए का खर्चा सेट हो जाए, ताकि काम तो 100 रुपए में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ओवर स्पेंड भी कर लूं तो 110 तक काम चल जाए। तो उससे होता यह है कि आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिव इवेल्युएट नहीं होती। तो जब आप लोगों से पूछोगे तो लोग स्लैक का मार्जिन रख देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं अभी आप लोगों के साथ एक स्टडी प्लान बनाऊं कि चले हम देखते हैं कि फाइनल में कितने चैप्टर होने चाहिए, पार्टिसिपेशन से मैं बजट बनाता हूँ, एक प्लान बनाता हूँ, और फाइनल एग्जाम में क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप सब यही कहेंगे कि सर ये बजटिंग का चैप्टर ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये काफी है, यही इतना बड़ा है कि हम इसे तैयार कर लें तो बड़ी बात है। तो पार्टिसिपेशन बजटिंग का यही नुकसान होता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इनएफिशिएंट इनएफिशिएंसी का मार्जिन जो है, जैसे स्लैक कहते हैं, वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। एक बिहेवियरल इशू है, इंसान कंफर्ट चाहता है, सुकून चाहता है, काम नहीं करना चाहता, तो वो अपने आप को
वो वाला टारगेट नहीं दे पाएगा खुद जो उसका होना चाहिए, तो वहां पे उसे चाहिए डंडा, वहां पे उसे चाहिए एक उस्ताद या एक बॉस या एक टॉप मैनेजमेंट जो उसे टफ टाइम दे और उसके पोटेंशियल को रीच कराए। ठीक है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग मेरे से डिसएग्री भी कर रहे हैं। देखें, इंसान मुख्तलिफ तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। तो मैं तो एक जेनरिक बात कर रहा हूँ, दिस डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन, ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शंस। जितनी वेरिएशन इंसानों में है, हम तो उस पर अगर लिखना चाहें तो मेरे ख्याल में यहाँ तो 2 स्टाइल्स लिखे हैं बजटिंग के, 10 स्टाइल निकल आएंगे बजटिंग के। ये तो बातें सर मोटी मोटी बातें समझाने के लिए होती हैं, बहरहाल जिनको समझानी है उनको समझ लग रहा है। इसके बाद एक और वर्ड यहाँ पे आपके सामने आ गया, बजट कमेटी। देखें, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ कमेटी। हम बजट कमेटी बना देंगे। बजट कमेटी क्या है? बजट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें वो तमाम लोग जो बजट बनाने के जिम्मेदार होंगे वो शामिल होंगे। लाइक इस वक्त अगर आप और उसका एक ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर भी होगा, विच इज नॉर्मली द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। लाइक इस वक्त अगर आप पिक्टोरल देखें तो आपको यहाँ पे कमेटी की तस्वीर दिखाई गई है। सो दैट comprises a finance manager, a sales manager, a production manager, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये लेडी जो आपको नजर आ रही है, चलें हम इनको कह देते हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो बेसिकली कमेटी बनाने का फायदा क्या है? कमेटी बनाने का ये फायदा है कि जब ये तमाम लोग आपस में मिल बैठेंगे तो जो पॉलिसी मैटर्स हैं ये उसके मुतालिक भी डिसीजन ले सकेंगे और बजट प्रिपरेशन को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि बजटिंग में जगह जगह पे क्लैशेस आते हैं। जगह जगह पे आप एक दूसरे के साथ जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तब तक कुछ जो फिगर्स हैं वो सेटल नहीं हो सकेंगी। लाइक एक सिंपल सा क्लैश लेते हैं कि सेल्स मैनेजर ये कहता है कि मैं अगले साल 2 मिलियन आइटम्स बेच दूंगा, या अगर हम सेल्स मैनेजर से पूछते हैं कि अगले साल का टारगेट क्या होना चाहिए सेल्स का, तो वो कहता है कि 2 मिलियन आइटम्स मैं बेच दूंगा। क्या 2 मिलियन आइटम्स हम बना भी सकते हैं? ये किसने बताना है? प्रोडक्शन मैनेजर ने। तो अगर इसी कमेटी में प्रोडक्शन मैनेजर भी बैठा हुआ है तो वो ये कहेगा कि भाई हम तो 2 मिलियन आइटम नहीं बना सकते, हम तो मुश्किल से 1 मिलियन आइटम बना सकते हैं। तो जब हम बना ही नहीं सकते आप बेचोगे कैसे? तो यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें इन दोनों को आपस में सेटल करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन वाले से ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई आप 1 मिलियन आइटम से ऊपर क्यों नहीं बना सकते? तो वो बताएगा कि हमारे पास प्लांट की कैपेसिटी नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि प्लांट खरीद लें आप। तो फिर प्लांट खरीदा जा सकता है या नहीं जा सकता, कितने दिनों में खरीदा जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं परचेज मैनेजर बताएगा या फाइनेंस मैनेजर बताएगा पैसों के हवाले से। तो जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी तो बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर ये लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे तो फिर जाहिर सी बात है ये प्रोसेस और लिंगर ऑन होता जाएगा। So we need a budget committee that should be responsible for overall policy matters relating to the budget, and that should be responsible for coordinating the preparation of the budget, and that is normally headed by a management accountant. So this is a mechanism which must be used in the overall budgeting system. अब नॉर्मल स्टेजेस क्या होती हैं बजटिंग प्रोसेस की? सबसे पहले बजट पॉलिसी और बजट गाइडलाइंस उन लोगों को बता दी जाती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बजट प्रिपेयर करने के।
नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा मैनुअल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, पॉलिसी मैनुअल्स होते हैं, तो उसमें बजट मैनुअल भी होता होगा कि अगर बजट बनाना है तो किस तरह बनाना है, पॉलिसी क्या है, फॉर्मेट क्या है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है और फिर उसको कंसोलिडेट किया जाता है. So very first step is to communicate details of the budget policy and guidelines to those people responsible for preparing the budget. और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने डिटरमाइन करना है फैक्टर दैट रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट. अच्छा, ये वर्ड हमने क्यों यहाँ पे लिखा है? इससे पहले मैं अगर आपसे वैसे सवाल पूछूं तो व्हाट डू यू से कि अगर हमने बजट बनाना है तो सबसे पहले किसका बजट बनाएं? क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं से तो बजटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ना. हमने तो अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, तो हम सबसे पहले किसका बजट बनाएं? क्योंकि पहले किसका बजट बनेगा वो डिफाइन करेगा आगे तमाम चीजों को. तो व्हाट इज योर आंसर? दिस इज अ क्वेश्चन टू द होल क्लास. सबसे पहले हमें किसका बजट बनाना चाहिए? नो वॉइस मीन्स व्हाट? आवाज नहीं आ रही. मैंने पूछा है सबसे पहले किसका बजट बनाना चाहिए, आवाज तो जा रही है. I asked a question and nobody is giving me the answer. एक आंसर आ गया है जी, फाइनेंस का बजट बनाना चाहिए. एक आंसर आया मैन्युफैक्चरिंग का बजट बनाना चाहिए. एक आंसर आ गया जी, प्रोडक्शन का बजट बनाना चाहिए. तो इसका जो जवाब है वो ये है, और उसी लिए हमें यहाँ पे एक जवाब एक एक है जी, सेल्स का बनाना चाहिए. तो इसका जो जवाब है वो कोई एक नहीं है. इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है. इसको टेक्निकली हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. लिमिटिंग फैक्टर कोई ऐसा फैक्टर है जो हमारी आउटपुट को, ऑब्जेक्टिव को, गोल को, प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है. लाइक अगर सेल्स डिमांड लिमिटेड है तो फिर सेल्स डिमांड लिमिटिंग फैक्टर होगा. अगर सेल्स डिमांड है लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है, शॉर्ट सप्लाई में मटेरियल है, तो फिर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होगा. अगर लेबर लिमिटिंग है तो लेबर लिमिटिंग फैक्टर होगा. अगर मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है तो फिर मशीन लिमिटिंग फैक्टर होगा. तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि डिटरमिन द फैक्टर दैट रिस्ट्रिक्ट आउटपुट. सबसे पहले आप अपने लिमिटिंग फैक्टर को देखो कि कौन सा एक लिमिटिंग फैक्टर है. वैसे तो कई होते हैं, सेल्स भी हो सेल्स भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, यानी कि हमारी सेल्स डिमांड भी लिमिटेड है, मटेरियल भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है. जाहिर सी बात है, वी ऑलवेज हैव स्केर्स रिसोर्सेज. लेकिन उन सारों में से जो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, और वो कोई एक होगा. तो 99.9% केसेस में, और खास तौर पे किताब ये अज्यूम करती है कि सेल्स डिमांड जो है वो लिमिटेड है. मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ वर्ड के, सेल्स डिमांड को नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि वो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करता है. एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली किताब के जो बजटिंग का प्रोसेस है वो सेल से ही स्टार्ट होता है. बट इसको हम रट्टा नहीं मार सकते. हमेशा बजटिंग सेल से स्टार्ट नहीं होती. अगर आपका मशीन आवर्स शॉर्टेज है तो पहले तो ये देखा जाएगा कि उन मशीन आवर्स में कितने यूनिट्स बन सकते हैं. कितने बन सकते हैं वो तय करेगा कितने बिक सकते हैं.
तो नॉर्मली जब सेल्स डिमांड लिमिटेड होती है तो फिर कितने बिक सकते हैं वो तय करेगी कितने बन सकते हैं। तो पहला बजट कौन सा बनाना है, उसका जवाब ये है कि लिमिटिंग फैक्टर। इसको टेक्निकली बजटिंग के जबान में एक और नाम दी जाता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल बजट फैक्टर। तो सबसे पहले आपने अपना प्रिंसिपल बजट फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। वो अगर आपको नहीं बताया हुआ तो आप अज्यूम करोगे सेल्स डिमांड और आप स्टार्ट कर दोगे बजट बनाना सेल्स का। तो जब आप सेल्स बजट बना लोगे तो फिर बाकी बजट्स उससे खुद ब खुद ही निकल आएंगे। जब बजट्स बन जाएंगे तो फिर वो बजट्स नेगोशिएट होंगे विद हायर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होगा, रिव्यू होगा, फाइनल एक्सेप्टेंस होगी और इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो ये सॉफ्ट से प्रोसेसेस है, ना भी बताए जाए तो ऑब्वियसली इसी तरह ही होना चाहिए। अब हम एक डायग्राम देखते हैं कि जो मास्टर बजट का जो प्रोसेस है ओवरऑल वो किस तरीके से डायग्रामेटिकली अब आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम वो बजट बनाएंगे ऑन द टॉप जो हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। इस बजट से तय होगा कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, यानी कि सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट बनेगा, प्रोडक्शन बजट से मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का बजट बनेंगे और फिर सेल्स बजट से सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का बजट बनेगा, सेल्स बजट से कैश कलेक्शंस आ रही होंगी, लेबर से पेमेंट्स आ रही होंगी, मटेरियल से पेमेंट्स आ रही होंगी, ओवरहेड से पेमेंट्स आ रही होंगी, कैश बजट बन जाएगा और फिर दैट विल लीड टू अवर बैलेंस शीट एंड बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब ये सारी फिगर्स आपके पास होंगी तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बजट और बैलेंस शीट खुद ब खुद ही बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्लो किस तरीके से है कि फर्स्ट is the sales budget and sales budget is basically determining every other budget. In the end हमने ये बनाना है, ये क्या कहलाता है, मास्टर बजट। लेकिन मास्टर बजट उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक हम जो इंडिविजुअल फंक्शनल बजट्स हैं वो नहीं बनाएंगे। और अभी कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ इसके अलावा है, तो वो अभी हम बारी बारी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे इस स्टेज पे जो बेसिक्स हैं सारे बजटिंग के और जो प्रोसेसेस की डिस्कशन है, जो बेसिक सॉफ्ट इश्यूज हैं वो अब हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम जो एक एक सिंगल बजट है उस पे हम बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। वी आर लेफ्ट विद 30 मिनट्स, उन 30 मिनट्स में एक दो बजट हम बनाना सीख ही लेंगे। Okay, do you have any questions? This conference will now be recorded. Okay, अब आ जाएं फंक्शनल बजट्स पे। तो अभी जिस तरह एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हम सेल्स बजट बनाएंगे। अच्छा, अब ये जितना भी हम इस वक्त बजट्स बनाएंगे इसमें हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जो किताब से ही चल रहा होगा। मैं जस्ट ब्रीफ करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ये सारे इसके जो फिगर्स हैं वो मेरी स्लाइड्स पे मौजूद हैं, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी बजट्स इस वक्त आपको दिखाए जाएंगे और करवाए जाएंगे उसमें जो फिगर्स आ रही हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो किताब की एक एग्जाम्पल से आ रहे हैं और वो एग्जाम्पल है रॉयल कंपनी की। सो ये आपके सामने रॉयल कंपनी का जो जितना भी डेटा है, तो देखें एक नॉर्मल क्वेश्चन बजट का बड़ा लंबा सा होता है, 1-1.5 सफ़े 2 सफ़े का, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने आपको सेल्स का डेटा भी देना होता है,
कलेक्शन का भी देना होता है, पेमेंट का भी देना। देयर आर सो मेनी आइटम्स विच कुछ आपको बताए जाते हैं और कुछ आप खुद फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो रेलेवेंट डेटा जिस बजट से होगा वो स्लाइड पे आ रहा होगा। तो उस वक्त आपने मेरे से ये नहीं पूछना कि सर ये डेटा कहाँ से आ रहा है। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये डेटा एक क्वेश्चन से ही आ रहा है, जिसको आप डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन कह लो, जिसको एग्जाम्पल कह लो, किताब में वो एग्जाम्पल मौजूद है, और स्लाइड पे वो डेटा मैं लेके आऊंगा और फिर वहां से बजट समझा दूंगा। जिस तरीके से अब सेल्स बजट है, सेल्स बजट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रिपेयरिंग द मास्टर बजट। इस बजट में होता क्या है, इस बजट में सिंपल दो चीजें होती हैं, एक एक्सपेक्टेड सेल्स और फॉर द कमिंग पीरियड्स इन यूनिट्स एंड पाउंड्स। आपने बस ये बताना है इस बजट में कि आने वाले पीरियड्स में, आने वाले वक्तों में, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे कितने यूनिट्स बेचेंगे और कितनी अमाउंट होगी। आपने जस्ट एक सेल्स की अमाउंट बतानी है, विच मींस कि आपको अगर सेल्स की क्वांटिटी बता दी जाए। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन का डेटा देखिएगा, तो सबसे आसान बजट होता है, अगेन ये एक जो नीचे पट्टी चल रही है मुझे काफी अनॉइंग आ रही है, डेटा छुपा देती है। एनीवेज इसका सोल्यूशन क्लास के बाद देखते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे जो तीन जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, उस क्वेश्चन से आ रही है। The Royal Company is preparing budget for the quarter ending June 30. Budget sales for the next 5 months are 20,000 units in April, 15 May, 13 June, 25 in July and 15 in August. और जो सेलिंग प्राइस है वो 10 पाउंड पर यूनिट है। ये नीचे जो पट्टी छुप गई है ये उसमें ये लिखा हुआ है। तब इंतहाई आसान बजट है कि आपने जस्ट यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है मंथली बेसिस पे वो शो करनी है। इस वक्त दिस इज द इजीएस्ट मोस्ट बजट टू मेक, लेकिन मैं आपको बताऊं दिस इज द टफेस्ट बजट टू मेक प्रैक्टिकली। उसकी एक वजह है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं जरा बजट आपको दिखा दूं, और उससे पहले मेरा कंप्यूटर हेल्ड हो गया है। मेरे ख्याल में मैंने काफी इस कंप्यूटर को यूज कर लिया है। तो ये वो बजट है, सेल्स बजट। अब इस बजट में आप देखो क्या है, 3 मंथ्स है, क्योंकि हम मंथली बजट बना रहे थे और क्वार्टर का भी बना रहे थे, तो एक कॉलम क्वार्टर का है। आपने क्या किया, आपने बजट यूनिट्स ले लिए और वो दिए हुए थे, उनको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर ली, वो भी दी हुई थी, और ये अमाउंट्स आ गई। तो इसमें कौन सा मसला है। लेकिन प्रैक्टिकली इंतहाई मुश्किल बजट है। प्रैक्टिकली इंतहाई मुश्किल इसलिए बजट है क्योंकि ये जो फिगर्स आपके पास आ रही हैं, फोरकास्टेड फिगर्स कि 20,000 यूनिट्स अप्रैल में बिकेंगे, मई में 50,000 यूनिट बिकेंगे और जून में 30,000 यूनिट बिकेंगे। ये फिगर्स को फोरकास्ट करना इज नॉट इजी थिंग। ये अब इसके लिए होती है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग अभी हमने पढ़ी नहीं, पढ़ लेंगे किस दिन। टाइम सीरीज हमें पढ़नी पड़ेगी, शायद आपने इससे पहले टाइम सीरीज खुद भी पढ़ी हो। तो आपको पता है एक टाइम सीरीज डाटा होता है कि पिछले साल, 2 साल, 3 साल की सेल्स को देखते हुए हम एक टाइम सीरीज बनाते हैं और उस टाइम सीरीज को आगे ले जाके फोरकास्ट करते हैं। और फोरकास्ट में सिर्फ टाइम सीरीज नहीं होता, फिर उसमें सीजनल वेरिएशन, ट्रेंड और बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली ये अंदाजा लगाना कि अगले आने वाले माह में या क्वार्टर्स में या सालों में कितने यूनिट्स बिकेंगे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब आपको पता है तो फिर तो आपने मल्टीप्लाई करना है। सेल्स बजट बनाना, उसको फॉर्मेट बनाना मसला नहीं है, लेकिन ये नंबर्स को गैस करना, इवन सेलिंग प्राइस क्या होगी ये भी मुश्किल काम है कि कितने का बिकेगा अगले साल या अगले महीने, आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ये दोनों फिगर्स प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना मुश्किल है। अब जब है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो मल्टीप्लाई करके सेल्स बजट आपने बना लिया।
और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये एस्टिमेट्स गलत लगाए, यानी कि अगर आपका बजटेड सेल्स के यूनिट्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल सेल्स, लाइक आपने कहा था अप्रैल में 20,000 बिकेंगे, अप्रैल में 2,000 बिके, तो फिर तो डेफिनेटली आपकी बजटिंग एक्सरसाइज बड़ी पुअर होगी, क्योंकि आपका सारा अगले बजट, अभी हमने डायग्रामेटिकली भी देखा था, आपके अगले तमाम बजट्स का ताल्लुक सेल्स बजट पे है। सेल्स बजट तय करेगा प्रोड्यूस कितना करना है, प्रोडक्शन बजट तय करेगा मटेरियल कितना खरीदना है। तो अगर आपकी सेल्स की फोरकास्टिंग हाई है तो सारी चीजें हाई एंड पे चली जाएंगी, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल खरीद लेंगे। और अगर आपकी सेल्स बजट, सेल्स फोरकास्टिंग लो एंड पे है तो आप लो साइड पे चले जाएंगे। बाद में अगर डिमांड बढ़ी, आपके पास बेचने के लिए चीजें नहीं बढ़ी होंगी। very crucial budget, very sensitive budget, but for us, for you being a student, this is the easiest most budget because you just have to multiply units with the price. हाँ, अब इसमें मुश्किल कहाँ हो सकती है सवाल में, वो आपको छोटी सी इस तरह की बातें जरूर बता सकता है कि प्राइस जो है वो मई में बढ़ जाएगी इतने परसेंट से, और दिस एंड दैट। तो कोई ना कोई अगर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो उसको आपको जरूर इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो सेल्स बजट हमारा बन गया। इसके बाद सेल्स बजट तय करेगा प्रोडक्शन बजट को। सेल्स बजट से हम जाएंगे प्रोडक्शन बजट की तरफ। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि अगर हमें, अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था अप्रैल में 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, अब सवाल ये है कि अगर हमें अप्रैल में 20,000 यूनिट्स बनाने हैं तो हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? 20,000, 20,000 से ज्यादा या 20,000 से कम? तो दिस इज माय क्वेश्चन। अगर अप्रैल में 20,000 यूनिट्स बनाने हैं तो हम प्रोड्यूस कितने करें, ज्यादा, बराबर या कम? तो जवाब आ रहा है ज्यादा। तो इसका जवाब ये है कि ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला जो है ये किसी एक चीज पे डिपेंडेंट है। तो किस चीज पर डिपेंडेंट है? ये मामला डिपेंडेंट है स्टॉक पॉलिसी पे, कि कंपनी क्या स्टॉक रखना चाहती है या स्टॉक नहीं रखना चाहती। तो अगर ये कंपनी स्टॉक नहीं रखना चाहती और ये जस्ट इन टाइम बेसिस पे चल रही है तो ये 20,000 यूनिट्स अगर बेचने हैं तो 20,000 ही बनाएंगे, क्योंकि हम इन्वेंट्री रखना ही नहीं चाहते। हम समझते हैं इन्वेंट्री फजूल होती है, हम तो उतना ही बनाएंगे जितने बेचने हैं। लेकिन नॉर्मली हर कंपनी स्टॉक चाहती है। और स्टॉक किस लिए चाहती है? स्टॉक इसलिए चाहती है ताकि अगर डिमांड बढ़ जाए या अगर किसी वजह से वो उतना प्रोड्यूस ना कर पाए तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तो नॉर्मली स्टॉक को एज अ बफर, एज अ सेफ्टी रखा जाता है। जो कंपनी नहीं रखती वो इसलिए नहीं रखती कि वो समझती हैं स्टॉक रखने में पैसा जाया होता है, ब्लॉक होता है, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसपे आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होता, वर्किंग कैपिटल होता है। तो कई कंपनी नहीं रखती। अच्छा, फिर कई 10% रखती हैं, कई 20% रखती हैं, कई 30% रखती हैं, कई 100% रखती हैं। तो ये सारा मामला डिपेंड करेगा स्टॉक पॉलिसी पे। तो अब हमने सेल अगर 20,000 करने हैं तो प्रोड्यूस कितने करने हैं, इसका ताल्लुक है स्टॉक पॉलिसी से। क्योंकि प्रोड्यूस उतने करेंगे जिससे यूनिट्स बेचने वाले भी बन जाएं और जो स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं वो भी बन जाए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको स्टॉक पॉलिसी दी जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि रॉयल कंपनी वांट्स एंडिंग स्टॉक टू बी इक्वल टू 20% ऑफ द फॉलोइंग मंथ बजटेड सेल्स। हम ये चाहते हैं कि अगले महीने जितने यूनिट्स बेचने हैं उसका 20% पहले से बना के रख ले। ये 10% भी हो सकता था, 20% है, 30 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था। और फिर कुछ हमारे पास पहले से भी यूनिट्स पड़े हुए।
अब हमने क्या करना है, हमने बजटेड सेल्स में सिर्फ ये स्टॉक ही एडजस्ट करना है। तो लाइक हमारे पास अप्रैल की बजटेड सेल्स 20,000 थी, इसमें हमने ऐड किया जो हम स्टॉक रखना चाहते हैं। क्वेश्चन में उसने बताया था कि अगले माह की सेल्स का 20% हम स्टॉक में रखना चाहते हैं। तो 20,000 हमने बेचना है, 10,000 स्टॉक में रखना चाहते हैं, टोटल 30,000 बना हमें चाहिए। 4,000 हमारा पहले से पड़ा हुआ है, तो हम कितने बनाएंगे, 26,000। यही एक्सरसाइज आप मई में अप्लाई करोगे। मई में बजटेड सेल्स 50,000 है, हम स्टॉक रखना चाहते हैं 20% ऑफ द नेक्स्ट पीरियड सेल, टोटल 56,000 नीडेड है। पहले से हमारे पास 10,000 बना पड़ा हुआ है, तो हम कितना बनाएंगे, 46,000। सो बेसिकली दीज आर दी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। क्या किया है, सिर्फ छोटा सा काम किया है, डिजायर्ड एंडिंग स्टॉक ऐड किया है और बिगिनिंग स्टॉक लेस की है। तो अगर आप स्टॉक को एडजस्ट कर लें सेल्स में से, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आ जाएगी। इसमें किसी को सवाल है तो वो पूछ लें। अब प्रोडक्शन बजट के बाद आपने बनाना है मटेरियल बजट। अब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं ये तय हो गया। अब उन यूनिट्स पे मटेरियल कितना चाहिए ये तय करना है। कितना चाहिए, कितना खरीदेंगे और मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। So direct material budget details the raw material that must be purchased to fulfill the production budget and to provide for aggregate stock। अभी आपने देखा था कि मई के महीने में हमने 26,000 यूनिट्स बनाने हैं। अब सवाल ये है कि 26,000 यूनिट्स बनाने पे कितना मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन ये है कि एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है। तो बजट में बहुत सारी चीजें हमें फिर एक और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब हमें सवाल में ये बताया जा रहा है कि अच्छा ये हम आगे आगे थे, इतना आगे आगे थे। जी, अब हमें सवाल में ये बताया जा रहा है, अब ये सवाल का एक्सट्रैक्ट है सारा का सारा। सवाल में पहले आपको दिखा चुका हूं कि एट रॉयल कंपनी 5 पाउंड्स ऑफ मटेरियल, ये वेट वाला पाउंड है एलबीएस, 5 पाउंड्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए हमने कितना यूनिट बनाने हैं, 26,000। तो 26,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हमें 1,30,000 पाउंड्स मटेरियल के चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 1,30,000 पाउंड अगर चाहिए तो क्या हम 1,30,000 ही खरीदेंगे। अगेन इसका जवाब है स्टॉक पॉलिसी। कंपनी मटेरियल का भी स्टॉक रखना चाहती है और वो कितना रखना चाहती है, 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें जो स्टॉक है वो ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे और फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारा का सारा जब फॉर्मेट में आएगा तो कैसे आएगा वो आप जरा देख लें। हमने अप्रैल में प्रोड्यूस करना है 26,000, गौर से देख लें। एक यूनिट में 5 पाउंड लगता है। अब 5 पाउंड कह लो, 5 केजी कह लो। और अभी हमें सवाल में अज्यूम कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही मटेरियल लगता है, प्रैक्टिकली 10-10 मटेरियल लगता है। तो वो एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, बाद में कभी किसी सवाल में देखेंगे। तो 26,000 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट पे 5 पाउंड लगता है। तो टोटल 26,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1,30,000 के 23,000 पाउंड का मटेरियल चाहिए। कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो एंड में कुछ स्टॉक रखना चाहती है और वो 10% होगा फॉलोइंग मंथ की नीड्स का। तो फॉलोइंग मंथ की नीड्स है 2,30, इसका 10% होगा 23,000। तो 1,30
प्रोडक्शन की जरूरियात हैं, 23 स्टॉक में रखना चाहते हो, तो टोटल जरूरत क्या हुई 1,53,000। लेकिन कुछ आपके पास स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, ये निकाल दो, तो आप कितना खरीदोगे 1,40,000। तो दिस प्रोसेस यू विल रिपीट फॉर द नेक्स्ट मंथ। 40,000 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट पे 5 पाउंड चाहिए, टोटल 2,30,000 पाउंड चाहिए। एंडिंग स्टॉक 10% होगा अगले क्वार्टर की नीड्स, अगले मंथ की नीड्स का। ये टोटल जरूरत है, इसमें से बिगिनिंग माइनस कर दो, ये आप मटेरियल खरीदोगे, ये अगले पीरियड का मटेरियल खरीदोगे। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। और सवाल इस तरह पूछें कि सर ये वाली फिगर बता दें। सवाल ये नहीं होता कि सर ये दोबारा बता दें। दोबारा अगर आपने सुनना हो तो फिर रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में मुझे शेयर करनी पड़ेगी। हर महीने 10% स्टॉक जो है वो आप नहीं, हर महीने 10% नहीं सेव होता रहेगा, हर महीने 10% स्टॉक आप अगले महीने का 10% स्टॉक आप ने एंड में रखना है और पिछले महीने का स्टॉक यूज कर लेना है। पिछले महीने का यूज कर लेना है, अगले महीने का स्टॉक रख लेना है, फिर अगले महीने पिछले महीने का यूज कर लेना है, अगले महीने का रख लेना है। तो इस तरीके से होता जाएगा, ऐड ऑन नहीं होगा, पिछला यूज होता रहेगा। जून का एंडिंग स्टॉक जो है वो जुलाई का फिगर्स दी होंगी सवाल में, तो जुलाई की फिगर से आएगा, एक एक्स्ट्रा फिगर दी होगी। और ये जो लोग अपलोड करने का कह रहे हैं ना, तो पता नहीं ये मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड करता या नहीं करता, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। लेकिन पता नहीं मैंने आपको शायद ये बात कही हुई है कि जरा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, हर स्टूडेंट का ये टारगेट है। तो ये वैसे बात रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं ऑफ द रिकॉर्ड करता हूँ। This conference will now be recorded. सर 1,30,000 कॉस्ट है 26,000 यूनिट्स की, फिर इसमें 23,000 यूनिट्स। ये 1,30,000 कॉस्ट नहीं है, पहली बात तो ये है, ये 1,30,000 पाउंड्स हैं, यानी कि वेट वाला पाउंड है, केजी कह लो। फिर उसमें 26,000 यूनिट, फिर उसमें 23,000 यूनिट ऐड किए हैं जी, बिल्कुल ऐड किए हैं। और ये भी यूनिट्स, ये भी केजी, ये भी पाउंड्स हैं, तो पाउंड्स में पाउंड्स ऐड किए ना। अभी तो हम कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि 26,000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर पर यूनिट हमें 5 पाउंड का मटेरियल चाहिए। पाउंड यहाँ पे वो वेट वाला है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये कंफ्यूजन उन्होंने डाली है, इनको केजी कह देना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली इंग्लैंड में किताब लिख रहे हैं तो उन्होंने पाउंड ही कहना था। तो 26,000 यूनिट्स टाइम्स 5 पाउंड, टोटल प्रोडक्शन नीड्स है 1,30,000 पाउंड, उसमें 23,000 पाउंड ही ऐड किया। अभी तो हमने कॉस्ट ऐड ही नहीं की। कॉस्ट तो अब यहाँ से आ सकती है कि 1,40,000 पाउंड आपने खरीदना है, एक पाउंड की कॉस्ट 40 पेंस है, तो कॉस्ट के लिए तो अब इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, वो मेरे ख्याल में अगली स्लाइड में हुआ है।
तो अगली स्लाइड में हुआ है, फिलहाल आप कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह कल वी विल कंटिन्यू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द बजट्स। आज काफी हद तक सॉफ्ट इश्यूज पर टाइम लग गया, तो कल सारा हम बजटिंग का प्रोसेस लेबर से लेकर कैश बजट तक कंप्लीट करेंगे। सो कंटेंट वाइज कल इंशाल्लाह ये स्लाइड सारी कवर हो जाएंगी, अभी भी हाफ ऑफ द स्लाइड्स रहती हैं। कल भी क्लास में 11 बजे ही लूंगा। 8 AM क्लास इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक, स्पेशली जब आप वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं और